सुने ऑन एसआईआर अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या कहेंगे? আমাদের আজকে 31টা দল বোধহয় সই করেছে এই চিঠিতে। আমাদের চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়াকে ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের যে প্রধান বিচারপতিকে চিঠিটা দেওয়া হয়েছে, যে নির্বাচন কমিশনের যিনি সবচেয়ে উচ্চতম পদে বসে আছে, আমাদের জ্ঞানেশ কে কুমার, যাকে আমরা ভ্যানিশ কুমার বলি, তিনি যেখানেই যান তিনি এখানে এসছেন। আমাদের ভোট ভ্যানিশ হয়ে গেছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ভ্যানিশ হয়ে গেছে। তিনি রাম টেম্পলের ট্রাস্ট, যেটা রাম মন্দিরের ট্রাস্ট, সেখানেও উনি বিরাজমান। সেখানে আপনারা জানছেন যে সেখানে 3,500 কোটি টাকার লুট হয়ে ভ্যানিশ হয়ে গেছে। তাই এই চিঠিটা আমরা লিখেছি, আর আশা করি এখানে সব পার্টি, আম আদমি পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস, এনসিপি, সমাজবাদী পার্টি, যত বিরোধী পার্টি আছে সব একসাথে মিলে যৌথভাবে এই চিঠিটা ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। আর আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই যে বাংলার মাটিতে এখন প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা বিজেপিকে একটা জিনিস প্রশ্ন করতে চাই যে আপনারা জিতেছেন, খুব ভালো, লুট করে হোক যাই করে হোক আপনারা লিটেছেন, আপনারা বলছেন আপনারা মানুষের রায়ে জিতেছেন, খুব সুন্দর, আমরা তা মানছি যে আপনারা মানুষ ভোট দিয়েছে, আপনারা জিতেছেন। তা যদি মানুষ ভোট দিয়েছে আর আপনারা জিতেছেন, তা আপনাদের এত ভয় কিসের? আর আপনাদের ক্যাডার কোথায়? আমি তো আপনাদের ক্যাডারকে কোথাও দেখছি না। আপনাদের কয়েকটা নেতা অতি উস্কানিমূলক মন্তব্য করছে, আর বাকি পুরোটা আপনারা পুলিশ দিয়ে করছেন। জেলার এসপি এখন জেলার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট। আমাকে যদি কেউ বলে যে কৃষ্ণগড়ের উত্তরের জেলা প্রেসিডেন্ট আমি তৃণমূলের, তা এটা বিজেপির উত্তর এর কে জেলা প্রেসিডেন্ট আমি জানি না, কিন্তু কাজ এসপি করে দিচ্ছে। প্রত্যেকটা ব্লকে যদি তাদের ব্লক প্রেসিডেন্টকে কিন্তু আমাদের জানা নেই, প্রত্যেকটা কাজ তাদের ওসি করে দিচ্ছে। আপনারা দেখলেন এটা পৃথিবীর ইতিহাসে, ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের ইতিহাসে, যে আমাদের রবিবারের দিনে কুণালদা, আমাদের একজন রাজ্যসভার সাংসদ, 2-3 জন এমএলএ 6 জন মিলে ধরমতলায় গিয়ে একটা খালি রাস্তায় মেপেছে। কোনো মঞ্চ ছিল না, কোনো ভিড় ছিল না, কেউ ছিল না, এবং ছবিটা নিজেরাই আপলোড করেছে। এখন সেটার ভিত্তিতে কগনিসেন্স নিয়ে তাদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে, আইনি নোটিশ। এটা কোন অপরাধ আমরা জানতে চাই। আজকে কলকাতা পুলিশ কমিশনার 21শে জুলাইয়ের এত ভয় কি? আপনাদের যদি কোনো একটা ছোট্ট মিটিংয়ে আটকানো হতো, আপনারা হাইকোর্ট গিয়ে ওটা নিয়ে আসতেন, মনে আছে? আপনারা আজকে সারা মধ্য কলকাতায় 31শে আগস্ট না কত, বোধহয় 2 মাস আপনারা ব্ল্যাঙ্কেট 144 ধারা অর্ডার নিয়ে এসছেন। কিসের ভয়? কেন? মধ্য কলকাতায় 5 জনের বেশি মিটিং করতে পারবে না? তো গণতান্ত্রিক অধিকার কোথায়? এই যে পুলিশ স্টেটে আজকে পরিণত হয়েছে, এবং আজকে আমরা কোর্টে গিয়েছিলাম, এই যে আপনাদের নেতা মন্ত্রী সবাই বলছে ডিম থেরাপি, আর বিজেপির লোকেরা এই মিথ্যে কথাটা চালাবার চেষ্টা করেছিল প্রথম 1 মাস, যে এটা জনরোষ। এটা কোনো জনরোষ ছিল না, এটা বিজেপির গুন্ডামি ছিল। আর আজকে প্রত্যেকটা পুলিশ স্টেশনে গাইডলাইন দিতে বলেছে ডিজিকে, এটা চলতে পারে না। আর আগামী দিন এরা ভাবছি, দেখুন যখন এরা এখন নতুন এসেছে তো খুব দাঁত দেখাচ্ছে। 1 মাস 2 মাস যেতে দিন, আইনি বিচার ব্যবস্থা তো দেশে এখনো আছে। আমি তো মানবো না যে বিচার ব্যবস্থা একেবারে উঠে গিয়েছে। যতদিন বিচার ব্যবস্থা আছে, কোনো না কোনো দিন আমরা কিন্তু রেহাই পাবো। তাই কর্মীদের বলছি, আপনারা যেখানে সেখানে আজকে কথা, মুখের ভাষা কি, সার্চ করতে এসছে, সার্চ কেন করছে, ওয়ারেন্ট কোথায়, বলে ওসব হিন্দি ছবিতে হয়। এসডিপিও তেহট্ট আমাকে মুখের ওপর বলছে ওগুলো হিন্দি ছবিতে হয়, ওয়ারেন্ট নিয়ে সার্চ, আমরা এমনি সার্চ করি। কাউকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ স্টেশনে, কেন? বড়বাবুর সাথে কথা বলবে। বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা? তাই এরকম পুলিশ স্টেট তো চলতে পারে না। বাংলার মানুষ যদি আদৌ তাদের ভোট দিয়ে থাকে, এটা নিশ্চয়ই এটা করার জন্য ভোট দেয়নি। तो हम लोग जो एप्लीकेशन किया है उसको रिजेक्ट किया है। हम लोग सोच रहे हैं क्या करेगा, कहाँ मीटिंग करेगा नहीं करेगा, हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन 21 जुलाई होगा और बंद करने नहीं सकेगा। अभी आज जो 163 का नोटिस दिया है, जो पहले 144 था, पूरा सेंट्रल कलकत्ता में कोई मीटिंग मिছিল नहीं होगा, उसको बंद किया है। इसका अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में जाएंगे। ये अनडेमोक्रेटिक है, ऐसा करने नहीं सकता है। अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो विरोधी का बात सुनने के लिए डर खाते हैं। उन्होंने सब डेमोक्रेटिक
जो प्रोटेस्ट है, रैली है, सबको बंद करना चाहता है। लेकिन हम लोग भी लड़ेंगे, हम लोग भी राजनीतिक मैदान में भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे। उन्होंने उसका कफीन को पहले पेरे काल वो डाल दिया। वो जो गुंडा इन क्या लिया है, एंटी सोशल। जो लोग एंटी सोशल था वो लोग एंटी सोशल बिल लिया है। अरे तो इसको भी हम लोग देखेंगे। उनको जो पॉलिटिकल मोटिव है, ऑपोजिशन में जितना है लीडर्स, वो सबको पकड़ लेंगे, पकड़ के घुसा देंगे। यही उनका इच्छा है, यही उनका इच्छा है। तो इसका विरुद्ध में हम लोग लड़ेंगे। लड़ने के लिए हम लोग एक इंची जमीन भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग नहीं, और विरोधी पॉलिटिकल पार्टी है, सीपीएम है, कांग्रेस है, वो लोग सोचेंगे वो लोग क्या करेंगे। लेकिन हम लोग लड़ेंगे मैदान में, दोनों जगह में, पॉलिटिकल फील्ड में भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। इतना ऑटोक्रेट गवर्नमेंट कभी कोई नहीं देखा था। ये जो पब्लिक सेफ्टी बिल, इसका तहत 75-76 में अटल बिहारी वाजपेयी अरेस्ट हुआ था, मधु दंडोपाध्याय अरेस्ट हुआ था, जॉर्ज फर्नांडेज अरेस्ट हुआ था, इमरजेंसी का टाइम याद करके देखिए। अभी वही 50 बरस से ये आइन को, जब भी वामफ्रंट सरकार आया, उसके बाद तृणमूल सरकार आया, इस आइन को इंप्लीमेंट नहीं किया। उन्होंने अभी उसका आइन को इंप्लीमेंट कर रहा है अमेंडमेंट करके। तो उन्होंने कौन रास्ता पकड़ लिया? उन्होंने तो इंदिरा गांधी का रास्ता पकड़ लिया, सिद्धार्थ शंकर का रास्ता पकड़ लिया। उनका आइडल है अभी इंदिरा गांधी, सिद्धार्थ शंकर राय। उन्होंने भूल गए अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भूल गए जॉर्ज फर्नांडिस। विरोधी को मुख बंद करने के लिए जो करना दरकार है वो लोग करता है, और हम लोग इसको प्रतिबाद करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई होंगे, लड़ाई जम से होंगे। आप हम लोग को जेल में घुसाएंगे ना, घुसाइए, कितना बार जेल में घुसाएंगे। जेल का डर मत दिखाएंगे। आप तो बोलते हैं पाताल से निकाल के ले आएंगे। अरे आपको बीजेपी वाला सब आपको अग्निमित्र पर क्या किया, क्रिमिनल ऑफेंस क्या किया, आपको पास बैठा है, उसको घुसाइए। जो पुलिस वाला सब कर रहा है उसको घुसाइए। पहले ज्यादा बात बोलने से नहीं होता है, काम करके दिखाइए। और अभी हमारा जो राज्यों का एम्प्लॉइज फेडरेशन है, उसका प्रेसिडेंट मदन मित्र के किया है, वो भी आपको माध्यम से हम बोल देते हैं। थैंक यू। इंडी अलायंस जितने भी हैं एक जॉइंट लेटर प्रेजेंट करेंगे बिफोर द सीजीआई रिगार्डिंग द एसआईआर इशू अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन। वो हमारा इंडिया जोट को जो मीटिंग हुआ था ना, उस मीटिंग में डिसाइड हो गया था। तो डिसाइड होके उसमें डिसाइड किया था, सब मिलके एक चिट्ठी भेजेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पास। जो अभी जो चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, ये सब में ये बीजेपी लोग जाली वोट किया है, वोट चोरी किया है। ये हमारा इंडिया जोट का फैसला था, वो फैसला का माफी के हुआ। आखिरी सवाल यह है कि आज कोलकाता हाईकोर्ट में देखा जा रहा है कि जगह जगह पे अंडा फेंका जा रहा है। उसको तो ऑर्डर किया है, वो तो सुबह तो बोल दिया, हम बोल दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी अच्छा नहीं है। ये जो हो रहा है ये पश्चिम बंगाल का नहीं, अच्छा नहीं है, और ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने बोला है, जो डीजी को डायरेक्शन दिया है गाइडलाइन करके, एक काम गलत है और पुलिस को इसको पकड़ना होगा, केस करना होगा उन लोग का विरुद्ध में, ये डायरेक्शन देने के लिए बोला है। चलो देखते हैं क्या है। कि भाजपा चोरी में नंबर 1 है। वोट चोरी, विधायक चोरी, एमपी चोरी, चंदा चोरी,
आपने पूछा कि चिट्ठी जो हम लोगों ने दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसमें लिख करके दिया है कि जो सीईसी हैं वो आज भी उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। पहले मेंबर थे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, जहां 3500 करोड़ का घोटाला पहले हुआ था, उसके बाद उसकी जांच नहीं हुई। ऐसे में उस व्यक्ति का उस पद पर रहना क्या उचित है? तो यह सबसे पहला है। दूसरा, बीजेपी के पास कोई काडर काम करने वाला नहीं है। उनके ये गुंडे हैं कुछ, जिन गुंडों के बल पर वह लोगों के ऊपर कभी डीम फेंकवाते हैं, कभी कुछ करते हैं। और उन सबों के बारे में मालूम है। जो अभिषेक बैनर्जी के ऊपर अटैक हुआ था वह भी लोग जानते हैं, उसमें भी बीजेपी के कुछ गुंडे थे जिन लोगों ने यह हरकत किया था। पुलिस के सामने जाकर के कहो किसी का घर भंगचूर हो गया, कोई भी शरीफ आदमी हो, उसको ये लोग जेल डाल देते हैं। और जो गुंडा मवाली बदमाश करप्ट है वो सब बीजेपी में चला जाता है। आप लोगों को तो मालूम है वॉशिंग मशीन का होता है। अभी पुलिस का इंस्पेक्टर वो ब्लॉक का सभापति है बीजेपी का, और जो डिस्ट्रिक्ट का एसपी है वो डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी का सभापति है। इसलिए आप पुलिस से कुछ यह नहीं सोच सकते कि वह कोई आपके लिए काम करेगा। यह सारी चीजें आपके सामने में है। यह लोग 21 जुलाई के हमने उसके लिए परमिशन मांगा, डरते क्यों हैं ये लोग? 4 लोग शराफत में जाके कहीं ट्रैफिक तो नहीं रोक रहे थे, किसी प्रकार से किसी को तंग तो नहीं कर रहे थे, डीम तो नहीं फेंक रहे थे। वो तो सिंपली जाकर देख रहे थे, जहां रोड खाली था वहां पर उसको नाप रहे थे। या तो उनकी मंशा होती कि वह किसी प्रकार का दंगा करें, बदमाशी करें, वो तो किया नहीं उन्होंने, और उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। यह मानसिकता है, यह डर है बीजेपी को। जानती है, आपने देखा किस प्रकार से जनता उमड़ रही है, लोग आ रहे हैं, ममता दीदी से मिल रहे हैं। सिर्फ 30 लाख वोट का अंतर था, सिर्फ 30 लाख, 30 लाख डिफरेंस। हमको 2 करोड़ 60 लाख मिला, उनको 2 करोड़ 90 लाख मिला, जबकि 91 लाख वोट काट दिया गया। ऐसा इन्होंने महाराष्ट्र में किया, ऐसा इन्होंने दिल्ली में किया, ऐसा इन्होंने हरियाणा में किया। ऐसा क्या था कि लोकसभा इलेक्शन में बुरी तरीके से हार गए और 6 महीने बाद 2/3 मेजॉरिटी से जीत गए। 400 का नारा दे रहे थे, 240 में रह गए। 2 का टांग पकड़ा है, एक नीतीश कुमार का, एक नायडू का, दोनों का टांग पकड़ करके ये सरकार चल रही, माइनॉरिटी सरकार है। तो यह स्वतः स्पष्ट है कि जो अभी तोड़फोड़ कर रहे हैं ये एमपी की, जो गद्दार लोग इनके पास जा रहे हैं केवल इसलिए कि ये चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि 2/3 बहुमत हमको पार्लियामेंट में मिल जाए और हम डिलिमिटेशन कर लें, क्योंकि ये जानते हैं कि ये हारेंगे 2029 में, 2029 में, और बहुत लोगों को जेल जाना होगा। धन्यवाद। भैया, कर्नाटका में भी एसआईआर शुरू हुआ है, क्या लगता है कि अब कर्नाटका की बारी है? अरे ये लोग तो यही हरकत करते हैं और क्या करेंगे, जीत तो सकते नहीं। आप देख लीजिए, बिहार में 1,38,000 वोट का अंतर था सिर्फ, और वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं था। कमाल है, 20 साल से है, जबकि वहां रेप, मर्डर, डकैती, चोरी सब होता है। वहां सरकारी दफ्तरों में होता है, सरकारी अफसर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद तो ये सारी चीजें हैं।